کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ پہلا لمحہ کیسا ہوگا جب انسان نے اپنی انگلیوں سے مٹی پر الفاظ کندہ کیے، جب خدا کا پیغام پہلی بار کاغذ پر نہیں بلکہ زمین کے ذروں پر لکھا گیا؟ یہ کلام وقت کے سینوں سے گزرا، مٹی کی تختیوں سے چمڑے کے تماروں تک پہنچا اور پھر بردی کے کاغذ سے چھاپے خانے کے صفحوں تک۔ یہ محض کتاب نہیں بلکہ یہ خدا کی وہ سانس ہے جو انسان کے ہاتھوں سے تاریخ میں رقم کی گئی اور آج بھی زندہ ہے۔ جیسا کہ ہمارے ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم نے ہاؤ ٹو ریڈ دا بائبل کے نام سے ایک ترتیب وار سلسلہ شروع کیا ہے، جس کی پہلی ویڈیو کا لنک ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ وہاں سے اس سلسلے کی پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم چند ایک اہم سوالات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن میں پہلا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس کیسے مارز وجود میں آئی؟ کن ہاتھوں نے خدا کے کلام کو پہلی بار لکھا؟ مٹی، پتھر، چمڑا اور دھات، ان سب کا بائبل سے کیا تعلق ہے؟ اور آخر کیوں یہ کتاب ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی زندہ، مؤثر اور جیتی جاگتی حقیقت ہے؟ آئیے آج ہم اس روحانی اور تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ بائبل کیسے مارز وجود میں آئی، کن لوازمات پر لکھی گئی اور کیسے یہ آسمانی کلام ابدیت کے لیے محفوظ ہوا۔ انگریزی لفظ بائبل دراصل قدیم فرانسیسی لفظ بائبل سے لیا گیا ہے، جو لاطینی لفظ ببلیا سے ماخوذ ہے۔ یہ لاطینی لفظ یونانی ببلیا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کتابیں۔ یونانی لفظ ببلیون یعنی کتاب دراصل قدیم مصری لفظ ببلوس سے بنا ہے، جس کے معنی کاغذ یا کتابی مواد کی ہے۔ گری ہارڈس ووس اپنی کتاب کے دیباچہ ببلیکل تھیولوجی میں تھامس ایکوینس کے الفاظ کا اقتباس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم الہی خدا کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، خدا کے بارے میں تعلیم دیتا ہے اور انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ ہمارے زمانے کی عقل سے بیزار اور تعلیمات سے گریزاں فضا سے طویل عرصے تک گزر جانے کے بعد علم الہی اب شاید اس صدی کے ابتدائی برسوں کے مقابلے میں کچھ بہتر مقام پر ہے۔ یہ تبدیلی خوشائند ہے، تاہم یہ اعتراف ضروری ہے کہ قدامت پسند پروٹسٹنٹ حلقوں میں بھی علم الہی کو وہ توجہ، عزت اور وقار ابھی تک حاصل نہیں ہو سکا جو اسے معرفت خدا ہونے کے ناطے ملنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ بائبل کن لوازمات پر تحریر ہوئی۔ جدید دور کے انسان کے لیے ایسے لوازم کی کمی نہیں جن پر وہ کچھ تحریر کر سکتا ہے۔ آج کاغذ بکثرت موجود ہے اور چھاپے خانے کی بدولت جتنے مقدار اور تعداد میں ہم چاہیں کسی بھی مواد کو چھاپ سکتے ہیں۔ ذرا دور قدیم کے انسان پر غور کریں کہ کاغذ کی ایجاد سے پہلے اور چھاپے خانے سے پہلے کے دور میں تحریرات پر وہ کیسے کام کرتا تھا۔ 15ویں صدی میں چھاپے خانے کی ایجاد سے پہلے تمام تحریریں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں۔ ایسی تحریروں کو ہم عام طور پر مسودہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ ایسی اصل سے مشتق ہے جس کے معنی سیاہ کرنا یا سیاہ ہونا کے ہیں۔ انگریزی زبان میں ہم ایسی نگارش کے لیے لفظ مینیوسکرپٹ استعمال کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم میں کاغذ کی دریافت سے پہلے چند چیزیں لوازمہ تحریر کے طور پر استعمال کی جاتی تھیں، جن میں سب سے پہلی چیز مٹی کی تختیاں ہیں۔ تقریباً 3500 قبل مسیح سے میسوپوٹامیہ میں سومیری لوگوں میں مٹی کی تختیوں پر لکھنے کا رواج موجود تھا۔ یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ سیموئل جیشرز اپنی کتاب عہد عتیق کا تاریخی سفر، جس کا ترجمہ مسیحی عشائت خانہ لاہور کے ایک معروف ترجمہ نگار جیکب سیموئل شنوا نے کیا، میں فرماتے ہیں کہ سومیری قوم نے ہی دنیا کو فن تحریر سے شناسا کیا۔ اس سے پہلے دنیا فن تحریر سے واقف نہیں تھی۔ یرمیہ اور حزقیل اپنے صحائف میں ایسی تختیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ یرمیہ کی کتاب 17واں باب پہلی آیت۔ مٹی پر لکھی ہوئی تحریر کو محفوظ کرنے کے لیے تختیوں کو آگ میں پکایا جاتا تھا۔ قدیم زمانہ میں لوازمات تحریر میں سے مٹی کی تختیاں مقبول عام سامان تھا۔ آثار قدیمہ کی بدولت قدیم مشرق کے قریب سے مٹی کی ایسی ہزاروں تختیاں دریافت ہوئی ہیں۔ پتھر۔ کتاب مقدس میں تذکرہ ملتا ہے کہ بائبل کے انسانی لکھاریوں نے تحریر کے لیے پتھروں کا استعمال کیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ
और वहीं ठहरा रह, और मैं तुझे पत्थर की लोहें और शरीयत और अहकाम जो मैंने लिखे हैं दूंगा, ताकि तू उनको सिखाए। खरूज की किताब 24वां बाब 12वीं आयत। मेसोपोटामिया, मिस्र और कनान में पत्थरों पर लिखने का रिवाज आम था। ज़ाब्ता हम्मुराबी, संगे मुआबी और कुतुब बहतून पत्थरों पर ही लिखे गए। बुर्दी या नागरमोथा। अहद अतीक में पेपायरस का तर्जमा दोनों मरवजा तराजुम यानी पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर और सोसाइटी ऑफ सेंट पॉल में नागरमोथा और बुर्दी को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बुर्दी के लिए अंग्रेजी लफ्ज पेपायरस, कागज के लिए मुस्तमिल अंग्रेजी लफ्ज पेपर का माखज है। बुर्दी पर लिखने का रिवाज 3100 कबल मसीह से राइज था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल अपने दूसरे खत में लिखते हैं कि मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है, मगर कागज और स्याही से लिखना नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारे पास आने और रूबरू बातचीत करने की उम्मीद रखता हूं, ताकि तुम्हारी खुशी कामिल हो। और मुकाशवा 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। इन दोनों आयत में मज़कूर अल्फाज कागज और किताब से मुराद बुर्दी पर लिखी हुई तहरीर ही है। रख या चमड़ा। किताब मुकद्दस में बयान मिलता है कदीम जमाने में जानवरों के चमड़े को भी लाजमाए तहरीर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहूयकीम बादशाह ने यर्मिया के जिस तोमार को जला डाला वो गालबन चमड़े का ही था, क्योंकि उसे काटने के लिए बादशाह ने कलम तराश इस्तेमाल किया। पौलुस रसूल भी अपने रख के तोमारों के लाए जाने की दरखास्त करते हैं। तीमुथियुस का खत इस बात की निशानदेही करता है। उर्दू जुबान में आम तौर पर हम सिर्फ चमड़े का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंग्रेजी जुबान में मुख्तलिफ जानवरों की चमड़ी को लाजमा तहरीर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वादी कुमरान से दरियाफ्त होने वाले अदब में से चमड़े के बहुत से तोमार भी दरियाफ्त हुए हैं, जिनमें मशहूर तरीन तोमार येसाया नबी का सहीफा है, जिसकी हूबहू नकल पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अनारकली लाहौर के अजायब खाने में मौजूद है। ये उस कदीम तोमार की नकल है जिसका ताल्लुक 2री सदी कबल मसीह के साथ है। धात। तहरीरी मकासद के लिए धात को भी लाजमा तहरीर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि किताब मुकद्दस में लिखा है, और तो खालिस सोने का एक पितर बनाकर उस पर अंगश्तरी के नक्श की तरह ये कंधा करना खुदावंद के लिए मुकद्दस। इस इबारत में सोने पर लिखे जाने का जिक्र मिलता है। जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो 1 दिनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? किताब मुकद्दस के ये तमाम अल्फाज धातों पर लिखे जाने की तरफ इशारा करते हैं। चौबी लकड़ी की तख्तियां। किताब मुकद्दस के बाज़ मुकामात से मालूम होता है कि कदीम जमाने में 24 तख्तियां भी लिखने के लिए इस्तेमाल होती थीं। येसाया नबी को इसी तरह की तख्ती पर लिखने का हुक्म मिला, जहां लिखा है, फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया कि एक बड़ी तख्ती ले और उस पर लिख, महीर शलाल हाशबस के लिए। हबक्कूक भी अपनी इसी तरह की तख्ती पर अपने रुया को लिखने का जिक्र करता है। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रुया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके। यूहन्ना इस्तबागी के बाप जकरिया कहन ने अपने बेटे का नाम लिखने के लिए इसी तरह की 24 तख्ती इस्तेमाल की होगी। उसने तख्ती मंगवाकर यह लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है, और सब ने ताज्जुब किया। पाकिस्तान के मदारस में तवील मुद्दत तक 24 तख्तियों पर लिखने का रवाज कायम रहा और बाज मुकामात पर तहाल कायम है। आलाते तहरीर। दौरे हाजिर में लवाजमा तहरीर की तरह हमारे पास पेंसिल, कलम और बाल पॉइंट वगैरह की मानद बहुत से आलाते तहरीर मौजूद हैं। ताहम बाइबल के जमाने में कलमकारी के ऐसे आलात मुयस्सर नहीं थे। किताब मुकद्दस में बयान किया गया है कि उस जमाने में लिखने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता था उसे कलम कहा गया है। यह सैरुकी आला था जिसके लिखने वाले हिस्से को ढलान से बनाया जाता था। इसे मिट्टी या मोम की तख्तियों पर इस्तेमाल किया जाता था। दौरे हाजिर में इसे स्टाइलस जैसे लफ्ज से बयान करते हैं। बाज मर्तबा लोहा या लोहे का कलम भी लिखने के लिए इस्तेमाल होता था। खासकर चट्टान या पत्थर के कुतबों पर लिखने के लिए यही इस्तेमाल होता था, जिस तरह दौरे जदीद में हम छेनी से काम लेते हैं। अब हम बाइबल मुकद्दस की तकसीम पर कुछ बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी अहद अतीक और अहद जदीद। ये दोनों हिस्से मजमूई तौर पर
खुदा के मुकाशफे की मुकम्मल तारीख पेश करते हैं। बाइबल में कुल 66 किताबें हैं, जिनके मजमूई तौर पर 1189 अबवाब और 31,102 आयात हैं। अहद अतीक में 39 किताबें शामिल हैं, जिनके 929 अबवाब और 23,127 आयात हैं, जबकि अहद जदीद में 27 किताबें हैं, जिनके 260 अबवाब और 7,955 आयात हैं। बाइबल का सबसे तवील बाब ज़बूर 119 है, जबकि सबसे मुख्तसर बाब ज़बूर 117 है, जो बाइबल का दरमियानी बाब कहलाता है। बाइबल की सबसे लंबी आयत आस्तर की किताब 8वें बाब की 9वीं आयत और सबसे छोटी आयत यूहन्ना की इंजील 11वें बाब की 35 आयत है। अहद अतीक की तकसीम कदीम इसराइली सहाइफ पर मबनी है। मसीही उन्हीं किताबों को इल्हामी तस्लीम करते हैं जिन्हें अहले यहूद सदियों से खुदा का कलाम मानते आए हैं। अगरचे मसीही और इब्रानी मतून में तकसीम और तरतीब में मामूली सा फर्क मौजूद है। मसीही रवायत के मुताबिक अहद अतीक को 39 किताबों में तकसीम किया गया है, जबकि इब्रानी सहाइफ की तादाद 22 है। अहद अतीक को 4 बड़े हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी तौरेत, तारीखी किताबें, शायरी की किताबें और सहाइफुल अनबिया। तौरेत में बाइबल की पहली 5 किताबें शामिल हैं, यानी पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। तारीखी किताबों में वो तहरीरें शामिल हैं जिनमें बनी इसराइल की कौमी, मजहबी और सियासी तारीख बयान की गई है, जिनमें यशवा, कुजात, रूत, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहली सलातीन, दूसरी सलातीन, पहली तवारीख, दूसरी तवारीख, अजरा, नहमिया और आस्तिर शामिल हैं। शायरी की किताबों में 5 ऐसी तहरीरें शामिल हैं जो दुआ, मनाजात और हिकमत के गीतों पर मुश्तमिल हैं, जिनमें अयूब, ज़बूर, अमसाल, वाइज और गज़ल गज़लात शामिल हैं। आखिर में सहाइफुल अनबिया आते हैं, जिनमें नबूवती कलाम की 17 किताबें शामिल हैं। इन किताबों को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी अनबिया अकबर जिनमें 5 किताबें यानी यसाया, यर्मिया, नोहा, हिस्कियल और दानियल शामिल हैं, और अनबिया असगर जिनमें 12 किताबें शामिल हैं, हौसिया, यूएल, अमूस, अब्दिया, यूना, मीका, नहूम, हबकूक, सफनिया, हज्जाई, जिक्रिया और मलाकी। यूं बाइबल मुकद्दस एक ऐसा इल्हामी मजमुआ है जो तारीख, शायरी, नबूवत और शरीयत के जरिए खुदा के मुकाशफे की मुकम्मल तस्वीर पेश करता है। अगर अनबिया अकबर और अनबिया असगर के नबूवती अदवार को समझना हो तो लाजिम है कि पहले तारीख की 12 किताबों यानी यशवा से लेकर आस्तर तक का गहरा मुताला किया जाए। इन किताबों में बनी इसराइल की कौमी, मजहबी और सियासी तारीख उस तसलसल से बयान हुई है जिसके पस मंजर में नबूवती पैगाम जाहिर हुआ। दरअसल अनबिया के सहाइफ उन्हीं अदवार में तहरीर हुए जिन्हें दौरे सल्तनत इसराइल कहा जाता है, जो 2 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक असीरी से पहले का दौर जब इसराइल अपनी कौमी अजमत के अरूज पर था, और दूसरा असीरी के बाद का जमाना जब कौम ने जलावतनी, तौबा और बहाली का सफर तय किया। यूं तारीख की ये 12 किताबें उन तमाम हालात व वाक़यात का पस मंजर फराहम करती हैं जिनमें खुदा ने अपने नबियों के जरिए अपनी मर्जी, अदालत और नजात का पैगाम जाहिर किया। हमने देखा कि खुदा का कलाम मट्टी, पत्थर, बुर्दी, चमड़े और धात जैसे लवाजमात पर लिखा गया, और ये कैसे अहद अतीक की तारीख, शरीयत, शायरी और नबूवत में जाहिर हुआ। अगली वीडियो में हम अहद जदीद की तकसीम और उसमें शामिल किताबों पर मुफस्सल बात करेंगे। ये वो दौर था जब खुदा का कलाम यीशु मसीह की सूरत में मुजस्सम हुआ। हम देखेंगे कि नया अहदनामा किन हिस्सों पर मुश्तमिल है। अनाजिल अरबा, रसूलों के अमाल, खतूत और मुकाशफा की किताब का बाहमी रब्त क्या है। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।